یہ نہیں کہا حاضر محمد، یہ نہیں کہا حاضر علی نہیں، حاضر حسن نہیں، حاضر حسین، یہ بھی نہیں کہا. یعنی میں یوں سے سمجھاتا چلوں کہ میں بھی پاکستان واپس جاؤں گا، اکثر دوستوں کے ساتھ بیٹھوں گا، پوچھیں گے مجھ سے کہ بھائی آپ کیا کی مجلس پڑھی؟ ہاں. میں کہوں گا مجھے علی قادری نے بلایا. کچھ لوگ علی قادری کو جانتے ہوں گے، کہیں گے میں نے کہوں گا بھائی کوئی کتی شاہ ہیں، قمر الزمان ہیں، آغا ہارون ہیں، ان لوگوں نے مجھے بلایا. میں 2-3 سال اپنی محفل میں بیٹھ کر شمسی صاحب ان کا ذکر کرتا رہا. اتنے میں 3-4 سال بعد کہیں یہ تینوں ہی آگے محفل میں. تو محفل میں بیٹھنے والوں کو میں بتاؤں گا نہیں، میں صرف یہ کہوں گا یہ ہے وہ تین. یہ ہے آغا ہارون. کیا بات ہے، یہ تو وہ ہے جنہوں نے کہا میں آ سکتا ہوں. یہ تینوں کہیں گے نہیں آپ امان میں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تعارف ہوگا، تعارف کو اسے تفصیلی تعارف نہیں کہا جائے گا، بشدتاً بشدتاً تعارف کہا جاتا ہے کہ زیادہ ضرورت نہیں پڑتی تعارف. جی جی جی، ٹھیک ہے نا. جب جبریل نے کہا نا یا رب وہ بنتا تھا حاضر کی ساتھ کون ہے چادر کے نیچے، کہا ہم فاطمہ. یہ وہ فاطمہ ہے جس کا اکثر تم لوگوں سے میں ذکر کرتا تھا. ایسا نہیں ہے. کم از کم رب جلیل کو بات یہ تعارف کروانا چاہیے تھا یہ فاطمہ ہے جس کے بابا نبی ہے. اس کا شوہر جو ہے امام المتقین ہے. یہ حسن ہے سبز قبا ہے، یہ حسین سید الشہداء ہے. یہ نہیں تعارف کروایا. امام موسیٰ کاظم نے کہا اللہ یہ تعارف ہو باللہ ہے، اللہ یہ تعارف کروا سکتا ہی نہیں. امام کہہ رہے ہیں، امام کہہ رہے ہیں. بولا کیوں تعارف نہیں کروا سکتے؟ کہا اس لیے کہ خدا جانتا ہے محمد امت کا نبی ہے، خدا کا نبی نہیں ہے. حسین کائنات کے وارث ہیں، خدا کے وارث نہیں ہیں. یہ جب بطول میں توحید چھپی ہے، جب بطول اپنے آئمہ کیا کائنات کی حجتوں کی حجت ہے. بہت زیادہ ہوتا ہے بطول کائنات. چل میں بس یہی میں نے منہ پڑھنا تھا، بس 2 منٹ اور مجھے دیجیے تاکہ ٹھیک ہے جی. بطول کائنات کی، علی کائنات کی حجت، بطول علی کی حجت. سبحان اللہ، کیا بات، کائنات کی حجت. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. بسم اللہ. اب حجت تو سمجھ آ رہی ہے کسے کہتے ہیں حجت؟ ترجمہ کر کے بتائے سب کو، خاموش ہو جائیں گے صاحب. میں سمجھ رہا ہوں سمجھ آ رہی ہے. حجت کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے حجت، ایک ہوتا ہے محجوج. ٹھیک ہے نا. آدم حجت ہے اس وقت تک جب تک کہ نوح نہیں آئیں گے. نوح آئیں گے تو آدم محجوج ہو جائے گا، نوح کا اقرار واجب ہو جائے گا. آدم پہ یقین واجب ہوگا، اقرار نہیں. واہ واہ کیا بات ہے، واہ واہ کیا بات ہے. سمجھاتا چلوں جو ہی نبی کرتے جائیں گے کہ جب محمد آئیں گے تو محمد کا اقرار واجب ہے. آدم سے عیسیٰ تک کا مجھ پہ اقرار واجب نہیں، یقین واجب ہے. بسم اللہ. کیونکہ محمد ان کی حجت ہے. جی بسم اللہ. حجت موجود ہو سکتی ہے، یعنی ریٹائرمنٹ جسے جی اب سمجھ آئیے، ریٹائر ہو سکتا ہے. محمد حجت ہے. جی غدیر خم میں علی حجت ہو گئے. موجود ہو گئے. اب اقرار علی کا ہے، محمد پہ یقین ہے. اب علی
21 रमजान तक हुज्जत है, हाँ हाँ बेशक 22 रमजान को हसन हुज्जत है। क्या बात है मेरा मौला ने बहुत मुश्किल से मुझे समेटा जा रहा है। 10 मुहर्रम तक हुसैन हुज्जत, 11 को अली सज्जाद हुज्जत। हुक्म चलेगा हुसैन का नहीं अब। 21 रमजान तक अली का हुक्म चलेगा, यानी इनमें हुज्जत मौजूद होते रहेंगे। क्या बात है तवज्जो क्यों नहीं कर रहे? मगर बतूल के होते हुए 10 हुज्जतें बदल जाएं, बतूल सबकी हुज्जत है। ये महजूज नहीं होती। बतूल चाहे माजी में हो, बतूल चाहे हाल में हो, बतूल चाहे मुस्तकबिल में हो। अब बतूल तो बतूल है ना, बतूल का होता है, इस्म फातिमा है, इस्म ज़हरा है। मौला में मौजूद समेट रहा हूँ। अब जो बतूल है आले मोहम्मद के लिए, ये मसाइल शुरू नहीं करने लगा मैं अजीब आपको पटरी पे लेके चलने लगा हूँ 10 मिनट के लिए। बतूल का जो मयार जो मकाम हमें नहीं मालूम, मैं समझाने के लिए लफ्ज नहीं है ना, क्योंकि ये वो है जो लफ्जों से बबाला कर क्या बात है बतूल आदम से मोहम्मद और मोहम्मद से इमाम ज़माना तक हैं। बतूल तवज्जो है या नहीं? जो ज़हरा हूबहू वही है सानिया ज़हरा। बतूल है अपने बाप की उम्मे अबीहा, अपने बाप की माँ, अपने बाप की असल। ज़ैनब बीबी का नाम भी फातिमा है, ज़ैनब औदा है, ज़ैन बाप की ज़ीनत, बाप की ज़ीनत, ठीक है ना? ये बीबी है बाप की ज़ीनत। हुज्जतें बदलती रहेगी। बतूल माजी में भी बतूल है, हाल में भी बतूल होगी, मुस्तकबिल में भी बतूल होगी। हुसैन का हुक्म सज्जाद पे तो चल सकता है, बीबी ज़ैनब पे नहीं चल सकता। हुसैन को चलने के लिए पहले ज़ैनब से पूछना पड़ेगा। सज्जाद का हुक्म इमाम बाकर पे तो चल सकता है। तारीख पढ़ के देखिए, शाम के बाजारों में हुसैन सैयद सज्जाद ने हर एक पे हुक्म किया है, मगर अपनी मशीयत को चलाने के लिए पहले पूछा जब यजीद ने कहा कि रिहा होना है तो कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अपनी अम्मा से पूछ के आता हूँ। तो जो पुप्पी ने कहा वही बयान किया। फरमाते हैं हुज्जतो फिद दुनिया, दुनिया में कितनी हुज्जतें हैं, मगर बतूल चाहे 4 साल की हो, बतूल चाहे 16 साल की हो, बतूल चाहे बज़ाहिर 25 साल की हो या 55 साल की हो, वो उसकी हुज्जत होगी। यही है हिजाब इस्मत और यही है हिजाब अल्लाह। क्योंकि ये मुशफ़्फ़े सब ने शिफात इस बीबी से और ये बीबी शिफात करेंगी तो शिफात होगी। खुदा की कसम मोहम्मद मुस्तफ़ा ने पूछा, ज़हरा तेरे बेटे को रोने वाले तो बहुत गुनाहगार हैं, मैं जानता हूँ वो इतने गुनाहगार होंगे कि अंबिया की उम्मत शर्मिंदा हो जाएंगे। तो कब फिर क्या हो गया बाबा, मैं मुशफ़्फ़े हूँ, अगर अदल की बात आएगी, इंसाफ की बात आएगी तो उनकी शिफात के लिए मेरे अब्बास का एक बाजू काफी है। बोला आप आंसू कबूल करेंगे? कोई बनते सिवा हुसैन कोशिश किया करें कि रोने में शर्म नहीं होगी, चाहे आप माने ना माने, है तो परदेसी, और परदेसी बेहतर जानते हैं कि परदेसी कैसे। कभी काबा की कसम मासूम फरमाते हैं कि जब जो कोई भी अपने वतन से दूर हम बेवतनों को याद करते हैं, कोई मजलिस में आए ना आए 3 हस्तियां जरूर आती हैं। और मुझसे पूछे अली बाकर कौन कौन सी हस्ती, मेरे पास लफ्ज नहीं है, शादी बड़ी किताबों में देखी, वो लफ्ज मुझे मुतबादिल मिला
ये जहाँ हमारी नालायन पड़ी है वहाँ पे कलाकार आके बैठा है जिसने हल्का या कम वजन का नहीं 7 मन का लोहा आदमी पहन रखा है। उसकी आंखों से पानी नहीं खून बहता है। दूसरी हस्ती जो मसाइब सुनने आती है वही मस्तूरात में बैठी हैं। अल्लाह जाने आज भी उसके रुखसार नीले हैं। अल्लाह मैं बड़ा करीब से जल्दी से गुजर रहा हूँ और मैं तब्दीली मसाइब पढ़ना है, मैंने मुझे माफ कर दीजिएगा। और तीसरी हस्ती जो मसाइब सुनने आती है और मसाइब मैंने जिसका पढ़ना है वो बाद में बताऊँ मैं। जो तीसरी हस्ती मसाइब सुनने आती है वो कायनात की वो बीवी है। अल्लाह जाने आज भी उसके पहलू पे हाथ है वो जब बंदा जख्मी है या नहीं है। कोशिश किया करें 2 आंसुओं से अगर शिफात हो जाए तो ये सौदा महंगा नहीं। सैयदा ने ना नमाजें पूछनी है ना रोजे पूछने हैं, सिर्फ ये पूछना है कि मेरे हुसैन पे कौन रोया है, कौन है जिसने मेरी ज़ैनब की आसीरी को याद किया है, कौन है जिसने मेरी सकीना की आसीरी को याद किया है। बस अल्लाह ताला ने हुसैन मसाइब शुरू बड़े अजीब से तरीके से मैंने मसाइब पढ़ना है। अब्बास को 10 मुहर्रम का बड़ा इंतजार है कि 28 रजब मदीना छोड़ दिया है मैंने। मेरा हुसैन मुझे 28/10 को जब इजाजत देगा खून के कुश्ते लगा दूंगा, समंदर बह जाएंगे खून के, नदियां बह जाएंगी। चलिए अभी फलसफा हल करने जा रहा हूँ। मसाइब का मसाइब है और फलसफे का फलसफा है जो मरूसी ज़माम तक पहुंचा है। हकीकत क्या है मुझे इसका नहीं पता, मगर जो मैंने आइमा के अखबार में पढ़ा है वो बयान कर रहा हूँ। अब्बास ने पूरे सफर में हुसैन को दूसरी मर्तबा हुक्म देने की जहमत नहीं दी। दूसरी मर्तबा क्या वफा है। अब्बास उतर जाओ तो अब्बास उतर जाओ, अब्बास खड़े हो जाओ अब्बास खड़े हो जाओ। अक्सर बीबी पूछती अब्बास कोई तुम्हारे दिल की तमन्ना नहीं है? तो अक्सर कहते कि मौला ऐ मेरी आका ज़ाती मैं अपने दिल की तमाम हसरतें 10 मुहर्रम को पूरी करता हूं। जब मेरा आका मुझे इजाजत देगा अगर फौज शाम कूफा में न चली जाए, शाम की तरफ रवाना ना हो जाए तो मुझे अब्बास नहीं कहना। अज़ादारों नहर फुरात से खैमे उठाए गए, अब्बास खामोश। हुसैन ने कहा कि अब्बास खैमे उठा। अब्बास ने कोई बात नहीं की। मदीना छोड़ना है अब्बास ने कोई बात नहीं, मक्का छोड़ना है अब्बास ने कोई बात नहीं की। देखो तुम्हारा भाई मुस्लिम तैयार व मददगार मर गया है, अब्बास ने कोई बात नहीं की। अक्सर शाम के बाजारों में करबला के सब बाजार पता चल गए। आगे 10 मुहर्रम क्या देखा, मुझे रोने जो रोने आए हैं मैं उनसे खिताब कर रहा हूँ। जो ही अब्बास ने हुसैन ने क्या देखा कि एक हाथ में नेज़ा है, एक हाथ में तलवार है, सिर लोहे की पहन रखी है, अनक मुही सर पे बांध रखी है, तमाम मजाहिदों वाला लिबास पहना हुआ है। हुसैन ने पूछा अब्बास क्या है? कहा बोला बस इजाजत दें 28 रजब से 10 मुहर्रम का हर हिसाब चुकता करना है। जिसका दिल पत्थर का है मैं उनसे मुखातिब नहीं हूं, रोता वही है जिस पे बतूल राजी होती है। हुसैन ने मना नहीं किया शादी, मुझे आले मोहम्मद की तरफ की कसम मना नहीं की, और ये भी नहीं कहा कि पानी लाना है, ये भी नहीं कहा कि तलवार छोड़ दो नेज़ा ले जाओ, ये भी नहीं कहा, बल्कि हुसैन अंदर गए जुल्फ़िकार लेके आ गए और अब्बास को देखे का हो सकता है तुम्हारे फौरत जज्बात में तुम्हारी तलवार टूट जाए, हो सकता है तुम्हारा नेज़ा चलाते चलाते तुम्हारा नेज़ा टूट जाए। ये जुल्फ़िकार नेज़ा ये कभी नहीं टूटेगी, जितना खून बहाना है बहा दे, हुसैन मना नहीं करता। मगर एक बात याद रखना, तू जितनी लाशें गिराएगा सकीना को उतना बदला देना पड़ेगा। पत्थर का है मैं उससे मुखातिब नहीं हूँ, तू जितना खून बहाएगा शाम के बाजारों में इबादत को मसाइब ने शुरू कर दिया है। जिसने ये पत्थर के सादा को मेरे सादा मैं ये जुमला सुनना था ना कि तू जितने खून बहाएगा जितनी लाश नीचे गिराएगा, मेरी बेटियों को उतने बदले देने पड़ेंगे, मेरी बेटियों को उतना हिसाब देना पड़ेगा। तलवार छूट जिला खुद उतारी है और हुसैन ज़ैनब के खैमे पे आके अब्बास ने जुमला कहा है, ऐ मेरी सैयदा शाम के बाजारों में कभी तमाचा लगे तो हुसैन को माफ न करना, अब्बास को माफ कर देना कि मैंने तेरे हुसैन के हुक्म पूरी नहीं की। अदादारों बस एक बात सुनते यही मुझे इजाजत दीजिए, बस अदादारों अब्बास का घोड़े से उतरना जिनके दिल पत्थर के मैं बार बार कहता हूँ उनसे मुखातिब नहीं हूँ। अल्लाह जाने किसके पहलू पे सैयद सज्जाद बैठे हो, अल्लाह जाने किसके पहलू पे इमाम ज़माना बैठे हो, दिलों में दुआएं करते हैं कि मौला हमारे आंसू कबूल करो, हम प्रदेश में हमारी परेशानियां दूर फरमा। जितने मोमिनीन बैठे हैं अल्लाह ताला ने हुसैन बाबू ने फरमाते 11 मुहर्रम
जब 10 मुहर्रम को अब्बास घोड़े से जमीन पे उतरे, ज़ैनब ने देखा, अपने सर से खुद चादर उतारी और बीवियों को आके कहा मेरा जामिन रहा नहीं, अब तुम्हारी मर्जी, तुम जानो ये शिमर का नेज़ा क्या है, अगर खुद उतारनी है तो खुद उतार दो, मगर शाम में गरीबा की रात को लूटने आएंगे। अज़ादारों 11 को मुझसे पूछिए, 11 मुहर्रम से शाह जी ये मक्तल के जुमले हैं। इमाम ज़माना फरमाते जो इस मसाइल पे रोता है मैं उसके पास बैठता हूँ, उसके आंसू को खुद लेता हूँ और अपनी जख्मों पे लगा के कहता हूँ कि ये वो रो रहे हैं तुम्हारी बेटी को शाम के जिंदान में नहीं रोने दिया ना, ये कज़ादार तुम्हारी बेटी को रो रहे हैं जो रोने आए होता था हुसैन। जब 11 मुहर्रम काफिला चला है, 16 रबीउल अव्वल को यजीद के दरबार में काफिला शायद जैसे ही 16 रबीउल अव्वल को कुल 66 दिन बनते हैं कमर में, 66 रातें बनती हैं शायद, 66 दिन 66 रातें। काफिला कैद हो गया, शिवर आता है सन्नान के पास, सन्नान कह दो जुमला आपको बता रहा हूँ, सन्नान इस पूरे काफिले में 66 दिन और 66 रातों में कोई सोने दे, कोई लेटे उसे लेटने दे, वो ज़ैनब ना सोए जो अब्बास की धमकी वो ज़ैनब ना सोए जो मदीना से मुझे अब्बास की धमकियां दिया करती है। अज़ादार सकीना सुना सकीना भाग हालत ज़ंजीर में अपने दस्तर का मुफियमा कोशिश कीजिएगा आपको नींद ना आए। अज़ादारों का हाँ सकीना कोशिश करूंगी। अज़ादारों हाथ पसे गर्दन झूठ बोलते जाके मैं नंबर से मुकद्दस की कसम खा के कह रहा हूँ कोई रस्सियां नहीं बांधी, कोई रस्सियां नहीं बांधी, जंजीरें पहनाई गई। जंजीरों को 7 मुहर्रम से पहले आग पे गर्म किया गया है। मैं जुमला पत्थर से मैं मुखातिब नहीं होता जा रहा हूँ। 7 मुहर्रम से जंजीरों को गर्म किया गया, उसके बाद बीवियों को जंजीरें पहनाई, हाथ पर से गर्दन है। काफिला चला, 10 दिन हो गए ज़ैनब को सोने नहीं दिया। मैं झूठ बोलूं मौला मुझे गर्म कर दे, अज़ादारा ने हुसैन सोने नहीं दिया। मैं बार बार कह रहा हूँ ज़बान से नहीं रोका, जहाँ बीवी की आग लगती वही चाबुक मार देता, जहाँ बीवी की आग बंद होती वही चाबुक मार देता। अज़ादारा ने हुसैन ज़ैनब अली की बेटी अज़ादारा 10 दिन गुजर के सोने नहीं दिया, 20 दिन गुजर के सोने नहीं दिया, 40 रातें और 40 दिनों थका हुआ ज़ैनब का काफिला मकाम सबा पे उतरा। तो शाम से पीछे काफिला एक मकाम है, वह काफिले को उतारा गया। शिवर आके कहते हर एक को बैठने की इजाजत है इल्ला ज़ैनब है। अब्बास से ही अब्बास की बहन को सोने की इजाजत नहीं है। अज़ादार अली की बेटी छोड़ दो मसाइब हो रहा है। अली की बेटी पर से गर्दन रस्सियों से हाथ बंधे हुए हैं और दरख्त के साथ टेक लगाए खड़ी है। अज़ादार आधी रात के वक्त अली की बेटी आहिस्ता आहिस्ता बैठना शुरू हुई है। इधर सकीना उठी के बुढ़ी अम्मा को उठा दूं, सन्नान घोड़े की तरफ भागता है, एक नेज़ा निकाला, नेज़ा लेके चला अली की बेटी की तरफ, मगर सकीना के पहुंचने से पहले इसने इस जात का नेज़ा मारा। बीवी की तरफ के जंजीरें टूटती हैं। अब्बास के सर के नीचे आकर कहा अब्बास पहचान तेरे सहारे मदीना छोड़ो। अल्लाह मान, बस एक जुमला और सुन लीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। शादी रोने से बड़ी कोई इबादत नहीं है। हाथों में खून लिया, प्याला बना के अब्बास के सर के नीचे अब्बास पहचान तेरे सहारे मदीना से चली थी। हुसैन की तरफ देखेगा, हुसैन तेरा दिल बच गया, मेरी जान अल्लाह मांगा दे। अरे हुसैन तेरा दिल बच गया, मेरा अकबर नहीं बचा। अज़ादार बस वो भी तमाम और मुझे माफ कर दीजिएगा। अज़ादार हो गई हाय, आ गया करबला, चले मदीना। साथ साथ है ना, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जुमला कहना है। हर बीबी नाना के रोजे पे गई, किसी ने कहा नाना कैदन का सलाम, किसी ने कहा
کہا نانا یتیمہ کا کسی نے کہا نانا اسیر کا سلام کسی نے کہا نانا ان ہاتھوں کو سلام جس نے بہن کو زندان میں دفن کیا ہے حسین سب نے سلام کر لیا نا پھر آگے بڑھ کے کہتی آقا صاحب نانا کو نہیں ملو ملوں گی اگر کوئی میرے پاس کھڑا نہ ہو حسین کا کچھ ہو اور رقیہ میرے ساتھ آئے تینوں بیویاں نانا کے پاس بیٹھی مجھے معاف کر دیجیے گا سارا تو میرے ساتھ شاید بہت بڑا مسائل کر دیا مجھے معاف کر دیجیے گا جس نے سر پہ ماتم کرنا ہے وہ تیار ہو جائے کیونکہ بیوی کو پرسا دینا ہے اللہ تعالیٰ تینوں بیویاں بیٹھی علی کی بیٹی نے آہستہ آہستہ علی کی بیٹی نے آہستہ آہستہ خود سر سے چادر کر اور زخموں کو تلاش کرنا شروع کیا حضرت حسین پاس بیٹھ کر کہا نانا اکبر قتل ہوا مجھے دکھ نہیں ہے نانا میرا باز لہل فرات پہ قتل ہوا مجھے دکھ نہیں ہے نانا حسین قتل ہوا مجھے دکھ نہیں ہے دکھ ایک بات کا ہے کہ جب سکینہ روتی شمر کا ہاتھ بلند ہوتا میں سکینہ کے اوپر گر جاتی جب شمر کا تماچا سکینہ کو نہیں لگتا وہ نیزہ نکال کے کبھی میری پشت پہ مارتا کبھی میرے سر پہ مارتا عزادارو عزاد جو ہونے ہوں گے مار کر دیجئے گا عزادارو کا نانا مجھے شام کا وہ منظر یاد ہے جب سکینہ اونٹ سے زمین پہ گرتی ہے ایک آدمی آگے بڑھ کے کہتا ہے کون ہو تم کا انا بنت الحسین میں غریب حسین کی بیٹی ہوں اب یہ جملہ کہنا تھا کہ ایک ہاتھ اٹھا سکینہ کے رخساروں پہ